Arjun, Nishant, do you want to share about your business? Yeah, sure. Please go So, ahead. yeah, so my name is Arjun Mittal and I'm founder of Envinova. So at Envinova, we are creating sustainable infrastructure wherein we are doing solar powered charging stations. So for public places, we have this charging facility wherein you can charge your mobile phones, laptops, there's Wi-Fi and a digital screen to advertise. And so basically the idea is to create a sitting spot, a social spot for people where they can sit, work and socialize. So we are doing B2B clients as of now, and we have done a couple of installations last month and we are in the revenue stage. Thank you. हाय अर्जुन, आप अपना लिंक शेयर कर देंगे एक बार? आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है तो? Yeah, sure. I'll leave it in the chat box. ओके. Yeah, Anuradha. Hi. Just wait for 5 minutes. Ma'am is joining. Keshav, shall we start or we have to wait? We have 11 participants right now. We can start, ma'am. Recording is already started. Sure, sure. All right. I would first request all of you to unmute your videos. It will be good to know each other, see each other, and then start the session. Amitji, where we are starting. So if you're comfortable, please, you can unmute your video. So in schools, we used to have a zero period. I think let's call the zero period off and we can start the session. I'll just wait for Amitji to unmute his video. I have unmuted my video, but I think you're not able to see the my image now. No, we cannot. Just wait. There's some camera But issue. meanwhile, please feel free to share your social networking handle on the chat window. I have shared, friends. Do have a look. Yes. Karan, I saw, that's why I Yes. prompted others also. Thank you for sharing. Thank you, Shalini. I saw yours as well. अमित जी अनम्यूट म्यूट करके फिर से ट्राई कीजिए. मैं भी कर रहा हूँ दोबारा. Is it okay now? Yes, absolutely. Got you. So hello everyone. Good evening, Amit ji. Very good evening, Karan ji. कैसे हो? All good ji, all good. Good friends. So I would formally like to welcome our guest today, Mr. Amit Madan. He is the dynamic CEO at the helm of A Square Media, a serial entrepreneur and a visionary in marketing strategy with over 2 decades of trailblazing experience. With a proven track record of spearheading 200 plus brand executions, including major names like Reliance, Tata, Maruti Suzuki, Madanji has etched an unmatched legacy in media and marketing. And that's why we are bringing him today to talk about marketing. He's passionate about fostering young entrepreneurship and pioneering innovations in blockchain. His energy and zeal drive businesses
to unparalleled heights. At A Square Media, he is not just a leader, but a benchmark of excellence, symbolizing dedication, expertise, and a relentless pursuit of transforming brands and industries. So that's a little bit about Mr. Madan. If I carry on, I can talk about him for half an hour. That kind of a personality. He's also an author. I have his book. I'll just show it to you in a minute. And with that, I will present Mr. Amit Madan to please share his insights on marketing and help us all grow our businesses. Thank you so much, Anuradha ji, and thanks for this wonderful introduction also. So first of all, I would like to pay my thanks to Punjab Angels Network, first of all. Thanks to the whole team of Punjab Angels Network, as well as Sahil Makkad ji. And thank you, Anuradha ji, for being here with me, for improvising me also, rather. So let's start from the topic. Should we start? Absolutely. Yeah. तो टॉपिक मेरे ख्याल से अभी कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश और व्हाटएवर, मेरे बाकी और कोई लैंग्वेज मुझे आती नहीं है वैसे. इंग्लिश ही बेटर रहेगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स. पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा अमित जी, सो दैट द ऑडियंस नो द रियल अमित. जी, अनुराधा जी ने वैसे तो मेरे बारे में काफी बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा. मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, marketing strategist, and by academics I'm a mechanical engineer. मेरे ख्याल से ये सुन के सबको लगेगा कि ये क्या यार, मैकेनिकल इंजीनियर मार्केटिंग में कहाँ से आ गया. इट इज ये एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ था. जो मुझे लगा कि एक होता है एकेडमिक एक्सपीरियंस या एकेडमिक सब्जेक्ट को जो भी हम चूज करते हैं एकेडमिकली उसमें आते हैं, एक होता है एक्सपीरियंशियल. So coming to this particular trade is my experiential subject, you can say. तो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ज़्यादा पे करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी हम सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज भी देखते हैं दुनिया में, चाहे वो बिल गेट्स हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हैं, हमारे इंडिया की बात करें तो अंबानीज हैं, बिरलाज हैं, टाटा हैं, तो किसी की भी एकेडमिक स्टडीज उस सक्सेस की नहीं होंगी जिसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं. तो इट इज विद देयर ओन एक्सपीरियंस ओनली. तो मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने सही किया कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग इंडस्ट्री का. जो ये अभी अनुराधा जी ने ब्रांड्स बताए, मेरे पास अभी आई हैव मोर देन 200 एग्जीक्यूशंस विद डिफरेंट कॉर्पोरेट्स. तो आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो. सो ये मार्केटिंग में मैं अभी आ गया हूँ, तो इसके लिए एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करेंगे तो मेरे को अनुराधा जी और साहिल जी पहले बोल चुके हैं कि सर आपके पास टाइम है सिर्फ आधे घंटे का, जिसमें आपने अपना सारा 20 साल का एक्सपीरियंस कंट्रैक्ट करके निचोड़ के इधर देना है. तो मुझे लगता है कि आई शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. आप मेरे को लिंक्डइन पे देख सकते हो क्या क्या है. मेरे ख्याल से हमें सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना है, जिसके लिए मैं आज वहां यहाँ पे हूँ. शुड आई अनुराधा जी? जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मार्केटिंग से फेमिलियर हैं और बड़े अच्छे वे से कर रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट की मार्केटिंग. बस सिर्फ यहाँ पे देखने आया कि क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, कि शायद अमित मुझे और कुछ बता देगा तो मैं वो भी ऐड ऑन कर लूंगा. कितने लोग हैं आप यहाँ पे? थोड़ा सा इंटरेक्टिव जरूर रहेंगे. मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बातें करना शुरू करें, क्योंकि कईयों को हिचकिचाहट ये रहती है, हेजिटेशन रहती है कि यार मैं बोल नहीं सकूंगा यहाँ पे, मैं बोलना नहीं चाहता. लेकिन थोड़ा सा इतना इंटरेक्टिव जरूर रहिए कि एक थम्स अप कर दें कि हाँ जी हमें पता है या हमें नहीं पता है, बस दैट्स ऑल. आई वुड बी थैंकफुल. तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे पता होगा कि मार्केटिंग क्या है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है. डिजिटल मार्केटिंग ले लो, कन्वेंशनल मार्केटिंग ले लो, मार्केटिंग वैसे ही जोरों पे रहती है हमेशा. थैंक यू सो मच अंकुर जी, थैंक यू करण जी. तो नॉर्मली हम मार्केटिंग के बारे में जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं. ये मैंने बड़ी बार देखा है, बड़े सेशंस में देख चुका हूँ कि लोग बोलते हैं हाँ मुझे तो पता है मार्केटिंग के बारे में. इवन कई चीजें ऐसी हैं जो मैं भी सीखता रहता हूँ, जो नई इंट्रोड्यूस होती हैं चीजें, मैं भी कई बार सीखने को मेरे को मिलता है. आई एम लाइफ लॉन्ग लर्नर. जब तक मेरी आंखें खुली हैं मैं लर्नर ही हूँ. तो मैं हमेशा सीखता रहता हूँ. मार्केटिंग भी इसी तरह से आज भी सीख रहा हूँ. लेकिन जो मेरा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ.
तो मार्केटिंग मेरी नज़र में जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं है जो आप गूगल पे सर्च करके देख लेते हो या जो चैट जीपीटी में सर्च करोगे तो आ जाएगा। मेरे अपनी ऑब्जर्वेशंस है मार्केटिंग को लेके, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिली है। तो मेरी नज़र में मार्केटिंग वो हर चीज़ है जिसमें आप अपने बिजनेस का वो गोल अचीव कर लेते हो जो जिसके लिए आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। वो हर चीज उसमें आ जाती है। मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि जो आप गूगल से पढ़ोगे तो आपको आएगा कि वट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन आवर सेल्स दैट इज मार्केटिंग, वट वी डू इन एडवर्टीजमेंट दैट इज मार्केटिंग, वट वी डू इन प्रमोशन, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विस मार्केटिंग, बीटीएल, एटीएल, बड़ा कुछ आ जाएगा उसमें, पैकेजिंग। सो ये इतनी सारी चीजें अगर आप समझने लग पड़ो ना, तो शायद आप अपना बिजनेस छोड़ दोगे और मार्केटिंग के ऊपर ही ध्यान देना शुरू कर दो। अगर मैं कहूँ कि मार्केटिंग समझो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो, तो मेरे नहीं ख्याल से आप अपना बिजनेस कर पाओगे। आप सिर्फ मार्केटिंग ही करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, सिंपली नोइंग योर कस्टमर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है, जिसके लिए आपने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसको अगर आप सही वे से समझते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीजें करना शुरू कर देते हो धीरे धीरे, तो आपकी मार्केटिंग सक्सेस है। अब इसी चीज को थोड़ा और सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मार्केटिंग की ना मिथ्स बहुत है हमारे में, सो मेनी मिथ्स। हम मार्केटिंग को सेल्स के साथ मिक्स कर देते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज वन एंड द सेम थिंग, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग इज वन एंड द सेम थिंग, ब्रांडिंग वन एंड द सेम थिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन, पीआर, हम सारी खिचड़ी बना देते हैं कि ये सब चीजें मार्केटिंग ही है। अब ये चीजें अगर तो समझना, थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपको इसके बारे में नहीं पता और आप जानना चाहते हो, अदरवाइज मैं इसको स्किप करके अगले वाले सेशन पे आ जाऊंगा। नहीं जानना थैंक यू चाहते हैं करण जी। जी। जी, तो 3 वोट्स अभी मुझे नजर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से चलो हमें ये चीज पे थोड़ा वर्किंग कर लेनी चाहिए कि मार्केटिंग असल में है क्या, सेल्स क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है, ब्रांडिंग क्या है। ये वर्ड्स अलग अलग हैं, हर एक वर्ड मायने रखता है मार्केटिंग में। ड्यूरिंग द मार्केटिंग, ड्यूरिंग योर बिजनेस सक्सेस, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और जितनी देर तक हमें ये पता ही नहीं होगा ये चीज है क्या, तो हम खिचड़ी बना के सब कुछ करना शुरू कर देंगे या उनमें से एक दो चीजें रेंडमली पकड़ना शुरू कर देंगे, तो दैट इज नॉट मार्केटिंग। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिजनेस में सक्सेस मिलती है लेकिन हम उससे ज्यादा डिजर्व कर रहे होते हैं। तो वो डिजर्व जो कर रहे हैं वो चीज अभी तक हमारे सामने नहीं आती। अब जितना मर्जी सक्सेसफुल हो लो, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रहता है जहाँ पे आप सोचते हो कि यार ये हो जाता ना, तो काश मैं यहाँ तक भी कर लेता काम। वो चीज अगर हो जाती तो शायद मैं कुछ और होता। तो वो तभी होती है जब आप सारा कुछ सही वे से करते हो। द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग वही है जब आप उस चीज को पैसेज के अकॉर्डिंगली, पाथवे जो आपने डिफाइन किया है उस डिफाइंड पाथवे के अकॉर्डिंगली चल के कर लेते हो। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन, कम से कम इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मार्केटिंग में ही हम बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट। कौन लोग ये कहते हैं कि यार एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग एक ही बात है? एनीवन? कोई नहीं कहता, दैट्स गुड। मार्केटिंग जनरली हम जो वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ वेरी वास्ट अम्ब्रेला, बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी बिग अम्ब्रेला, जिसके अंडर बड़े सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट टिल द कस्टमर रिटेंशन। इस चीज में जो भी आता है ना, दैट इज अ बिग इकोसिस्टम। मैं हर चीज को इकोसिस्टम से ही कंसिडर करता हूँ हमेशा। कुछ भी काम करना हो, इवन अपने घर में सब्जी भी बनाते हैं ना, गृहिणियां जो हैं हमारे घर पे, हमारे मम्मा होंगे, हमारी वाइफ्स होंगी, हमारी बहनें होंगी, तो वो अगर कोई सब्जी भी बनाते हो, दैट इज एन इकोसिस्टम, जिसको अगर वो सही वे से नहीं समझते तो आपकी सब्जी भी सही नहीं बनेगी। जरा सा नमक भी कम हो गया तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो वो इकोसिस्टम को समझना जरूर है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस विद इन एन इकोसिस्टम ओनली। सो मार्केटिंग भी सेम इसी तरह का एक प्रोसेस है, जिसको एक इकोसिस्टम में रह के समझ के करना पड़ता है हमें। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? इट इज एन एलिमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्टों को एडवर्टाइज करने के लिए। एडवर्टाइज मतलब उसके बारे में कोई अच्छी अच्छी चीजें, उसकी
यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूएसपी क्या है उसकी, इस तरह की चीजें बता के जो हम करते हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट दैट कैन बी पेड ऑल्सो, दैट कैन बी ऑर्गेनिक और फ्री ऑल्सो। ये है एडवर्टीजमेंट का फर्क मार्केटिंग से। मार्केटिंग के अंडर है एडवर्टीजमेंट, ना कि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग सेम है। देन कम्स प्रमोशन। हम कई बार एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन को भी सेम ले लेते हैं कि यार प्रमोशन की है तो एडवर्टीजमेंट की एक ही बात है, बट नहीं। प्रमोशन इज कि हम जब कोई कोई भी लेट्स से हमारे प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। ये चीज मैं सबसे पहले वैसे बताना चाहूंगा कि हमारे दो तरह के प्रोडक्ट हैं। कोई भी बिजनेस ले लो, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, देर आर टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज, एंड दैट आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे जितने भी ऑडियंस में हम लोग बैठे हैं, हर बंदा अपने आप को अब भी इसी वक्त डिफाइन कर सकता है कि अंडर विच कैटेगरी ही और शी कम्स इनटू। ठीक है, तो उसमें क्या है, या तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट डील कर रहा होगा या इंटेंजिबल प्रोडक्ट डील कर रहा होगा। अगर टेंजिबल प्रोडक्ट की बात करें तो वो प्रोडक्ट है जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जिनको हम छू सकते हैं। मतलब तो छू सकते हैं का मतलब वो प्रोडक्ट है जिसको हम अपने हाथ में पकड़ के बेच सकते हैं, बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को, तो दैट इज टेंजिबल प्रोडक्ट। तो कुछ लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में है या ट्रेडिंग में है प्रोडक्ट की, वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी डील कर सकते हैं, कर रहे होंगे यहाँ पे। और कुछ लोग होते हैं जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स इज सर्विस। सर्विस, अब ये प्रोडक्ट भी जो मैं आपसे डील कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एन प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है कि मैं अपना, मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट है, दोनों ही फॉर्चुनेटली इंटेंजिबल है, दोनों ही सर्विस प्रोडक्ट्स हैं। कि हम कई बार अपनी सर्विस बेचते हैं, जैसे अभी करण जी ने यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन दी थी कि ही इज अ वीडियो डेवलपर, कि वो वीडियोस बना के बेचते हैं। अब वीडियो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा और उसमें चार एलिमेंट्स पड़ेंगे और मैं हाथ में पकड़ के बेच दूंगा उसको। दैट इज अ सर्विस। उस सर्विस में जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना हम अच्छा वीडियो वो कंसिडर करेंगे। तो कुछ लोग सर्विस में डील कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, कुछ टेंजिबल या गुड्स में डील करते हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। मार्केटिंग दोनों की अलग अलग तरह से हो सकती है। हो सकता है कुछ चीजें टेंजिबल प्रोडक्ट को सूट कर रही हो मार्केटिंग की, और कुछ एलिमेंट्स वैलिड हो रहे हो इंटेंजिबल पे। तो हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे आगे। अब आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो कि आप टेंजिबल की कैटेगरी में आ रहे हो या इंटेंजिबल की कैटेगरी में आ रहे हो, सर्विस है या गुड्स है। अब हम बात कर रहे हैं वापस एडवर्टीजमेंट क्या थी। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन वर्सेस एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में आपने अपने प्रोडक्ट को यूएसपी की, मतलब अपने प्रोडक्ट की यूएसपी को एक्सप्लेन किया आगे कि ये चीजें मेरी यूएसपी हैं, इसके कारण कस्टमर कनेक्ट होके आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। दैट इज एडवर्टीजमेंट। प्रमोशन में क्या आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंसेंटिवाइज कर देते हो। योर प्रोडक्ट में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल, आप उसको इंसेंटिवाइज कर देते हो कि भाई लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि एक टीवी है, एलईडी टीवी है, सैमसंग है मान लो। तो सैमसंग अगर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसमें लिखा आएगा कि दिस प्रोडक्ट हैज दीज मेनी ऑफ फीचर्स, तो आप इसको परचेज करो। लेकिन अगर वो उसको प्रमोट करेगा तो प्रमोशन इंक्लूड्स इंसेंटिवाइज दैट प्रोडक्ट, इंसेंटिवाइजिंग दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। कि मान लो वो एलईडी का प्रोडक्ट है 50,000 का, तो वो दिवाली पे ऑफर दे रहा है कि अभी दिवाली के लिए मैं उसको 30,000 दे रहा हूँ, 20,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो दैट कम्स अंडर प्रमोशन, नॉट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। देन इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है, ये भी, ये सारे एलिमेंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग ओनली। मार्केटिंग इज अ बिग अम्ब्रेला, दीज आर द एलिमेंट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग। सो उसके बाद आता है पब्लिसाइजिंग। अब पब्लिसाइजिंग और प्रमोशन कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, एक ही बात है जी, एक ही वर्ड यूज करते हैं और मार्केटिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पब्लिसाइजिंग इज जब आपके प्रोडक्ट को फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती, बोलते हो ना आप यार ये तो फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, एंड दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल। पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। ये की नहीं जाती, ज्यादातर ये हो जाती है। सिंपली मेरी आदत है, मैं हर चीज को एग्जाम्पल्स के साथ बोलता हूँ। तो अगर मैं पब्लिसिटी और प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग को कंपैरिजन करूं, तो पब्लिसिटी में क्या आएगा कि जैसे सपोज मैं अभी आपसे अभी मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप मेरे को फीडबैक दोगे
यार ये अच्छा लेक्चर था या नहीं था। लेकिन अगर मैं पब्लिसिटी की बात करूं, मान लो मैं पागल बंदा हूँ एक, और मेरे मुंह से गालियां निकल गई यहाँ से दो तीन, पंजाबी बंदों में से ना वैसे मुंह से गालियां निकलते रहती, टचवुड फॉर्चुनेटली मेरे मुंह से नहीं निकलती वैसे, पर बाय चांस अगर मैंने यहाँ पे कोई गाली बक दी, और वो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन की बजाय उसकी पब्लिसिटी होनी शुरू हो जानी है, दैट कैन बी नेगेटिव, रादर दैट इज नेगेटिव। ये कम लोग बोलेंगे कि लेक्चर कैसा था, ये ज्यादा लोग बोलेंगे कि उसने ना गाली निकाली थी यार, बंदा बड़ा गलत है। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी, एंड दिस इज नेगेटिव पब्लिसिटी। दिस एग्जांपल इज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज बोल दूं जो कभी किसी ने सुनी ना हो मार्केटिंग में, और वो बाहर जाके बताए, तो दैट इज पॉजिटिव पब्लिसिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। अब बात करते हैं इसी के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी एक अलग एस्पेक्ट है मार्केटिंग का। अब ब्रांडिंग वैसे तो एडवर्टीजमेंट के साथ ज्यादा यूज होता है। एडवर्टीजमेंट में हमने बताया था, याद है किसी को? थम्स अप करके बता दो, हाँ जी एडवर्टीजमेंट समझ लग गया है, और प्रमोशन और पब्लिसिटी भी समझ लग गई। थम्स अप करते रहोगे, मुझे पता है कि आप लाइव हो। थम्स अप नहीं करोगे, मुझे लगेगा यार सुन नहीं रहा कोई, ऊपर से आपने कैमरास भी ऑफ किए हुए हैं, तो मुझे लगेगा कि मैं तो बस अपने लैपटॉप के साथ ही बातें करी जा रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग इज जस्ट अबाउट योर ब्रांड ओनली, जिसमें कोई और बात नहीं होती, जस्ट हैमरिंग होती है ब्रांड की, ब्रांड के नाम की प्रेजेंस शो होती है सिर्फ। जस्ट मैंने एग्जांपल फिर देता हूँ कि अगर आप देखते हो मार्केट में एयरटेल लिखा आ रहा है, देखो साथ में मैं उनको भी एडवर्टाइज करी जा रहा हूँ, जिन लोगों के नाम, जिन ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ उनको फ्री फ्री की पब्लिसिटी अभी मिल रही है। तो लेट्स से एयरटेल लिखा है या कोका कोला आप लिखा देखते हो मार्केट में, दैट्स ऑल। कुछ नहीं लिखा हुआ साथ में, जस्ट एक ब्रांडिंग हो रखी है, कोका कोला लिखा हुआ है। तो दैट इज जस्ट ब्रांडिंग। इसका मतलब क्या होता है सॉरी, कि आप कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हो बार बार, कि आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंस बनी रहे, आपका प्रोडक्ट कहीं मिस ना हो जाए कंपटीशन में। अब मैं कोका कोला की बात कर रहा हूँ, तो उसके कंपटीशन में उसका अपना ब्रांड भी आता है, जिसको हम पेप्स सॉरी थम्स अप बोल देते हैं। दूसरे ब्रांड्स भी आते हैं, पेप्सी भी आती है। तो जिस तरह से उसकी ब्रांडिंग कम दिखेगी ना हमें मार्केट में, हम कुछ भी ले लेंगे मार्केट में जाके, लेकिन अगर हम उसकी ब्रांडिंग हैपनिंग दिखेगी हर जगह पे, तो हम पानी पीने या कोक पीने, या मेरे मुंह से कोक निकल रहा है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग ऐसी हो रखी है, तो हम ब्लैक ड्रिंक कोई भी लेने जाएंगे ना, तो हमारे मुंह से कोका कोला निकलेगा, या जिसकी हमने ब्रांडिंग देखी होगी वो निकलेगा जल्दी। अदरवाइज हम कुछ भी ले सकते थे, दुकानदार जो भी दे वो पकड़ सकते। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। इसमें और ज्यादा पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती, इसमें जस्ट ब्रांड का नेम सामने दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, जिसको हम हैमरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं मार्केटिंग में, कि बार बार दिमाग के ऊपर एक हैमर इफेक्ट देते हैं, हथौड़े जैसा इफेक्ट बार बार बजेगा तो वही चीज याद आएगी हमें। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग हम कवर कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझना मुश्किल नहीं होता कि मार्केटिंग असल में है क्या। नाउ बड़ा अम्ब्रेला कवर करने के लिए मार्केटिंग का मैं 3 फैक्टर्स आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप अगर याद रख लोगे तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि मार्केटिंग में क्या क्या चीजें कवर हो जाती है। फर्स्ट इज ATL, सेकंड इज BTL, एंड थर्ड इज TTL। ATL, BTL, TTL में सारा कुछ ही आ जाता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो चाहे वो मार्केटिंग हो, सब कुछ कवर कर लेते हैं ये 3 वर्ड्स। सो व्हाट इज ATL? आप नोट कर सकते हैं इसको। ATL इज अबव द लाइन। अबव द लाइन एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? जिसमें आप लाइन से ऊपर बात कर रहे हो। लाइन से ऊपर मतलब जब हम मैसिवली एड्रेस करते हैं पब्लिक को। पब्लिक कौन है? जिसमें हमारा ऑडियंस या कस्टमर भी बैठा हुआ है, वो पब्लिक है। जनरली मार्केट साइज जो डिफाइन करते हैं ना, वो हम पब्लिक को देख के करते हैं, कि सामने जिसके सामने हम प्रोडक्ट फेंक रहे हैं अपना, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ पे, उसमें हमारा टारगेट क्लाइंट कहाँ पे है। तो अल्टीमेटली वो पूरे के पूरे मार्केट में ही बैठा होगा कहीं पे, हमारा मार्केट साइज जो है, तो उसको हम एड्रेस करते हैं हमारे मार्केट साइज से। तो हम अगर पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक में अगर हम कोई प्रोडक्ट फ्लोट कर रहे हैं, तो वो ATL में हम मास पब्लिक की बात कर रहे हैं। मास पब्लिक में हमारा टारगेट नहीं आता, उसमें सभी आ जाते हैं। टारगेट में जब भी हम कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, वेदर इट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल, हम एक
टीजी डिफाइन करके करते हैं कि मेरा टारगेट गोल या मेरा टारगेट क्लाइंट है कौन सा। लेट से आपने अगर बात करें हम कंप्यूटर की ही, मेरे सामने लैपटॉप है, अगर मार्केट में मैंने लैपटॉप बेचना है तो मेरा टारगेट क्लाइंट कौन होगा? स्टूडेंट्स ज़्यादातर रहेंगे, या वो बिजनेसमैन रहेंगे जो कॉर्पोरेट्स में है, जिनको लैपटॉप यूज करके अपने ऑनलाइन में बिजनेस करना है। तो ये हमारा मोर और लेस टारगेट क्लाइंट रहेगा। अब मैंने लैपटॉप बेचना है, मैं या तो अपने टारगेट क्लाइंट को वो चीज एडवर्टाइज करूंगा या मार्केट करूंगा वहां पे, अदरवाइज मैं ऐसी मार्केटिंग करूंगा कि मैं सबको ही कर दूं, उसमें टारगेट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उस बात की अगर उस चीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे मास कम्युनिकेशन, या मैसिवली जहां पे हम एड्रेस कर रहे हैं, कि जिसमें हमारा टारगेट तो आ ही जाएगा, बाकी भी कवर हो जाएंगे। उसमें हम बात करेंगे एटीएल की, अबव द लाइन। अबव द लाइन मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर टारगेट क्लाइंट, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबव द लाइन। अगर अबव द लाइन एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। टीवी एडवर्टीजमेंट अबव द लाइन एडवर्टीजमेंट। टीवी एडवर्टीजमेंट क्यों अबव द लाइन है? सभी देख रहे हैं। अब मान लो एक मर्सिडीज कार की एडवर्टीजमेंट मैं कर रहा हूँ या मार्केट कर रहा हूँ उसको, और टीवी पे उसको एक रिक्शा वाला भी देख रहा है, जिसको मर्सिडीज का कभी बेचारे ने सपना भी नहीं देखना अभी कि वो रिक्शा चला रहा है और मर्सिडीज चलाएगा कभी, उसको परचेज ही नहीं करनी कभी मर्सिडीज, लेकिन वो भी टीवी देखते हुए मर्सिडीज की एड देख रहा है। सो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द टारगेट क्लाइंट, मर्सिडीज का वो टारगेट क्लाइंट नहीं है रिक्शा वाला, फिर भी वो उसको ऐड दिखा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग इज कॉल्ड ATL, above the line marketing. Then is below the line marketing. Below the line marketing is जब हम एग्जैक्टली अपने टारगेट क्लाइंट को ही वो चीज दिखाते हैं जिसको वो परचेज करनी है, वेदर योर प्रोडक्ट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल, आप उसी चीज को टारगेट करते हो जो आपका क्लाइंट है, जहां पे वो बैठा हो वहीं पे आप उसको मार्केट करते हो। तो ऐसी मार्केटिंग को हम बोलते हैं बिलो द लाइन मार्केटिंग। उसकी एग्जांपल्स अगर चाहिए तो हैंड थम्स अप कर दो, अदरवाइज मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, स्किप कर दूंगा। अगर एग्जांपल चाहिए तो नो थम्स अप, ओके। तो उसकी एग्जांपल है BTL की, बिलो द लाइन मार्केटिंग की, कि सपोज मैंने अपने प्रोडक्ट को बेचना है। लैपटॉप की बात करें जिसकी हम एग्जांपल दे चुके हैं ऑलरेडी, मैंने लैपटॉप बेचना है उस सेगमेंट को जिसने वो खरीदना है। अब वो सेगमेंट कौन था? स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स। तो मैं सिर्फ उसी जगह पे उसको हिट करूंगा या मार्केट करूंगा जहां पे वो लोग बैठे हुए हैं। सपोज मैं एक ऐसी एक्टिविटी करता हूं जहां पे एक इवेंट है, मान लो, जहां पे सारे स्टूडेंट्स ही आने लगे। एक कॉलेज ने या एक यूनिवर्सिटी ने एक इवेंट किया जहां पे सारे स्टूडेंट्स आएंगे अलग अलग कॉलेजेस से। तो मैं उस इवेंट में अपने लैपटॉप की ब्रांडिंग कर दूंगा या एक लेक्चर भी वहां पे डिलीवर करवा दूंगा। अब उस लेक्चर में मेरे प्रोडक्ट की यूएसपी साथ में कन्वे होगी। तो दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग विल बी अंडर द सेगमेंट ऑफ BTL, बिलो द लाइन, क्योंकि मुझे वहां पे जहां पे अपने प्रोडक्ट को बेचना था मैंने वहीं पे मार्केट किया उसको, और कोई बंदा आएगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट या इस तरह की मार्केटिंग को हम बोलेंगे BTL। नाउ कम्स TTL। TTL इज थ्रू द लाइन मार्केटिंग। थ्रू द लाइन मतलब जिसमें आप ATL भी कवर कर लेते हो और BTL भी कवर कर लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल सेक, इसी की बात करें, मान लो कि TTL एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उसकी एग्जाम्पल मैं नॉर्मली क्या देता हूँ कि हमने एक रिक्रूटमेंट कैंपेन किया मेरे कॉलेज के लिए या मेरी यूनिवर्सिटी के लिए, एक रिक्रूटमेंट कैंपेन किया जिसमें मुझे प्रोफेसर्स की या लेक्चरर्स की जरूरत है। अब वो लेक्चरर्स का कैंपेन मैं कर कल रहा कल हूँ। आएंगे वे। हेलो, या आप म्यूट कर सकते हैं जिनकी आवाज आ रही बीच में। तो मैंने एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया जो ATL कैंपेन है। ATL कैंपेन मान लो मैंने न्यूज़पेपर में किया। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो एन ATL मीडिया, जिसमें जो मास मीडिया है जिसको कोई भी पढ़ सकता है। 1 रुपया पे करो और न्यूज़पेपर पढ़ लो। अब उस मीडिया में मैंने एडवर्टीज किया अपने प्रोडक्ट को, या मैंने अपना कैंपेन किया यूनिवर्सिटी का एक रिक्रूटमेंट कैंपेन जिसको ATL मीडिया में हाईलाइट किया, लेकिन उसके साथ एक फिल्टर लगा दिया। साथ फिल्टर क्या लगाया कि आई वांट दोज प्रोफेसर्स इन माय यूनिवर्सिटी जिन्होंने MCA की है या पोस्ट ग्रेड्स हैं, जिन्होंने MCA की है या MTech की है, और जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब क्या हुआ, कैंपेन तो मैंने किया ATL मीडिया में,
न्यूज़पेपर इज एन ATL मीडिया, जिसको मैसिवली लोग पढ़ रहे हैं, मैसेज में लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने फिल्टर साथ में लगा दिया उस पे कि मुझे सभी ना आ जाए मेरे पास इंटरव्यू देने, फिल्टर देख लें क्या लगा हुआ है कि मैं 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हूँ और एमटेक हूँ या MCA हूँ, वही लोग सिर्फ इंटरव्यू के लिए आएंगे और कोई नहीं आएगा। सो दिस काइंड ऑफ कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ TTL और थ्रू द लाइन कैंपेन। सो आई होप यहाँ तक जो मैंने अभी बताया वो आप सबको क्लियर है। थम्स अप करके मेरे को बता दीजिए प्लीज। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू करण जी, बाकी लोग थैंक यू अर्जुन जी, बाकी नहीं सुन रहे मुझे लग रहा है। अच्छा अभी आना शुरू हो गए। शालिन जी थैंक यू सो मच। सो TTL तक हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मार्केटिंग का। अब वो पीस जो आप नॉर्मली देखते हो मार्केटिंग में, वो पीस क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है क्या क्या नहीं है, वो आप जज कर सकते हो अपने आप ही, क्योंकि आपको ये सारे एलिमेंट्स पता चल गए हैं कि हमें चाहिए क्या या क्या नहीं चाहिए इसमें। अब पीज में क्या आता है मार्केटिंग पे, जो आप नॉर्मली गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो, उसमें आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि पीज और पीज ऑफ मार्केटिंग आपने नॉर्मली सुने होंगे। मार्केटिंग के पीज में आ जाते हैं प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रोसेस, प्लेसमेंट, प्राइस, प्रमोशन एंड व्हाट कम लास्ट, प्राइस और पीपल। पीपल नहीं बोला था मैंने। तो ये 7 पीज हैं जिनको हम कवर कर लें तो हमारी सारी मार्केटिंग कवर हो जाती है उसमें। अब इसको मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे दूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए अगर आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे। अब इसमें मेरी एक्सपर्टीज यहाँ पे आएगी कि मैं जहाँ जहाँ पे जो जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी वही चीज बोलूंगा। सिर्फ प्रोडक्ट की हम बात करते हैं पहले। तो आप ऑलरेडी सेगमेंटेड हो, जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं टेंजिबल, वो उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिनके पास सर्विसेज हैं या इंटेंजिबल है वो उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट, टेंजिबल वाला प्रोडक्ट लेट से किसी का है, तो प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली होती है कि हम उसकी क्वालिटी इस तरह की बनाएं कि जिसके लिए वो बनाई गई है, वो प्रोडक्ट जिसके लिए बनाया गया है या वो सर्विस किसी के लिए जिसके लिए भी डेवलप की गई है, उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाए जो हमारा कस्टमर चाहता है। आप हमेशा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे अपने आप की जगह कस्टमर को रख के देखो। यू बी ए कस्टमर एंड देन सी द प्रोडक्ट, योर ऑन प्रोडक्ट जो आप डेवलप कर रहे हो, उसको देखोगे कि भाई मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ एक कंज्यूमर की हैसियत से या नजर नजर से। तो आपको उसमें फ्लॉज नजर आने शुरू हो जाएंगे कि यार इसमें ये कमी है, इसमें ये चीज क्यों नहीं है, इसमें ये चीज कम क्यों है, ये चीज ज्यादा क्यों है। हमेशा जितनी देर तक आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही कि ये प्रोडक्ट अब परफेक्ट प्रोडक्ट बन गया है, तब तक उस प्रोडक्ट को कभी लॉन्च मत कीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अदरवाइज कहीं ना कहीं जाके वो चीज आपके सामने आ जाएगी कि इसमें स्टार्टिंग लेवल पे इसकी फाउंडेशन ही खराब हो गई। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन ही गलत होगी वो जरा सी हिलेगी, कल को 1.0 लेवल का भी अर्थक्वेक आएगा तो वो कहीं ना कहीं पे डगमगाने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, इंट्रिकेटली उसको देखें कि कहाँ पे कमी है, उस कमी को उसी वक्त सुधारें, उसके बाद बात करें उसको लॉन्च करने की। ठीक है। सो प्रोडक्ट के बाद आती है उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग में हम देखते हैं प्रोडक्ट की, हमने बड़ी बार सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, बड़ी कॉमन सी एक स्लैंग है यहाँ पे मार्केट में। मेरा उसमें इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो दिखता है वो तो बिकता है, लेकिन जो सही दिखता है वही बिकता है। जो सही दिखता है सिर्फ वही बिकता है। आप अपने प्रोडक्ट को सही दिखाने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली होती है उसकी राइट पैकेजिंग। अगर वो टेंजिबल प्रोडक्ट है तो उसका डिब्बा कैसा है, उसकी बैग कैसा है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको बड़े इंट्रिकेटली वर्किंग करनी पड़ती है। इवन मैं तो कई बार किसी का प्रोडक्ट अपने क्लाइंट का देखता हूँ ना, तो वो बोलते हैं सर इसमें कोई सुजेशन, तो मैं देखता हूँ कि भाई इसमें से इसके बैग में से धागा क्यों दिख रहा है, पैकेजिंग के बैग में से धागा दिख रहा है, वो भी मुझे चुभता है क्योंकि हम उस नजर से देख रहे हैं। तो उसका धागा भाई किसी तरह से ये दिखना नहीं चाहिए आपका, चाहे आपका जो पैकेजिंग जहां से ले रहे हो उसको बोलो कि मुझे प्रोडक्ट फिनिश, पैकेजिंग की फिनिश ऐसी चाहिए कि उसमें जरा सा भी फ्लॉ नजर ना आए। इस लेवल पे जब आप डिजाइन करना शुरू कर देते हो चीजों को, तो आपको पैकेजिंग सही हो जाती है, जो दिखता है और जो सही दिखता है वो सही बिकना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो इसी तरह आपका अगर इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, सर्विस है आपके पास कोई देने के लिए, उस सर्विस को इस लेवल पे पैकेजिंग, पैकेजिंग उसके इसमें कैसे आएगी, उसमें कोई डिब्बा तो लगेगा नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए
उसका कस्टमर एक्सपीरियंस बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, दैट वुड बी पैकेजिंग ओनली, कि कस्टमर को लगे कि नहीं यार, जिसकी प्रेजेंटेशन इतनी सॉलिड है उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी उतनी सॉलिड हो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट, पैकेजिंग का भी साथ में। देन कम्स द प्रोसेस। ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, प्रोसेसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। प्रोसेस में आ जाता है कि आपने राइट चैनल कैसे चूज करना है, कैसे प्रोडक्ट जाएगा और कैसे प्रोडक्ट मेरी टीजी तक या जो मेरा टारगेट क्लाइंट है उस तक पहुंचेगा। उसका फ्लॉलेस डेवलपमेंट करना है। अगर वो गुड्स है तो गुड्स में आ जाएगा कि उसकी कन्वेंस कैसे होएगी, उसकी फ्रेट क्या कितनी डलेगी, कैसे डलेगी, जल्दी कैसे पहुंचेगा, अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है खराब तो नहीं हो जाएगा रास्ते में जाता जाता। ये सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। मेरे पास टाइम कम है, मैं मिस नहीं कर रहा चीजों को, लेकिन मैं बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ आपको सिर्फ। तो मेरे ख्याल से इतने में क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें। तो इस तरह से आपको प्रोसेस का ध्यान रख के चलना है। देन कम्स प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की हमें प्रोडक्ट को राइट जगह पे प्लेस कैसे करना है, ये बड़ी कॉमन और कन्वेंशनल चीज है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीज और ऐड करूंगा। प्लेसमेंट नॉर्मली होती है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो मैं वहां पे प्लेस करूं जहां पे मेरा टारगेट क्लाइंट इजीली पहुंच सके और प्रोडक्ट को बाय कर सके। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आ जाता है, उसमें डीलर नेटवर्क भी आ जाता है, सीएनएफ भी आता है। तो ये सारी प्लेसमेंट्स रहती है सॉरी। लेकिन मेरी नजर में प्लेसमेंट दिमाग की प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। आई एम सॉरी। दिमाग में प्लेस करना है कस्टमर के। कस्टमर पर्सोना समझना है कि क्या है, कस्टमर को क्या चीज कैसे दिखाएंगे तो वो चीज जल्दी लेगा हमारी। तो राइट प्लेसमेंट इन द कस्टमर माइंड जब होती है ना, तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी, मतलब प्रोडक्ट की बेचने की क्वालिटी ऐसी बन जाती है कि वो बाकियों से पहले कंपटीशन मार्केट में जल्दी बिकना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने क्लाइंट को समझना है, जो मैंने सबसे पहली चीज बोली थी। आपने अपने कस्टमर को सिर्फ जानना नहीं है, उसको पहचानना है मैसिवली। अगर आपका टीजी का बैठा है मार्केट में, 100 करोड़ की जनता में से 10 लाख भी आपका टारगेट क्लाइंट है, तो उस 10 लाख को पहले तो ब्रॉडर लेवल पे समझो, फिर थोड़ा उसको कंट्रैक्ट करते रहो अपना विजन। लेकिन अल्टीमेटली आपका फनल यहां तक आ जाना चाहिए कि उसको इतना डीपली समझ लो अपने कस्टमर को कि वो उसको लगे कि यार यही बंदा है जो मुझे समझ रहा है, बाकी कोई कंपनी नहीं समझ रही, यही ब्रांड समझ रहा है। अब तो मैं प्रोडक्ट लूंगा, यहीं से लूंगा, चाहे वो प्रोडक्ट मुझे डबल रेट पे क्यों ना मिले। कस्टमर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्राइस को नहीं देखता। आज अगर आप खाने की बात करो ना, तो मार्केट में अगर आप कोई अच्छा खाना खाने जाते हो, आपको अच्छे खाने वाली जगह पे, महंगे खाने वाली जगह पे हर तरह का बंदा नजर आता है। आपको क्लास ही नहीं सिर्फ नजर आएगी, आपको वहां पे वो बंदे भी नजर आएंगे जो बेचारे दिन में मुश्किल से अपनी रोटी खा रहे हो, कहते हैं ठीक है एक हफ्ते में मैंने खाना खाना है, अच्छा खाना खिला के लो। तो वो बंदा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी में। तो आप ये समझ के चलो कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। अगर नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो भी कर दो, आपको कंपटीशन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेड ओशन से ऑटोमेटिकली ब्लू ओशन में शिफ्ट हो जाओगे। रेड ओशन ब्लू ओशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता अभी। सो कमिंग नेक्स्ट, प्लेसमेंट हो गई हमारी। देन इज प्राइसिंग। प्राइसिंग भी कनेक्ट हो जाती है प्लेसमेंट के साथ ही। अगर आपने राइट प्लेसमेंट कस्टमर के दिमाग में कर दी, तो फिर आपको प्राइसिंग देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको बस ये देखना है कि मुझे बाकियों से थोड़ा दाम ज्यादा भी रख लूँ ना, तो मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। अदरवाइज आपको प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट पे देखना पड़ता है, जो कन्वेंशनल मार्केट में समझाया जाता है कि वो देखते हैं जी आपको अपना प्राइस इस तरह से रखना है कि वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ compete कर रहा हो। अगर दूसरे की चीज 10 रुपए की है, आपको 9 रुपए की बेचनी है। मैं इससे उल्टा डील करता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर किसी की चीज 10 रुपए की, आप 15 की रखो, आप 12 की रखो, हमेशा ऐसा ही करो। ये ना सोचो कि मैं 9 रुपए की चीज बेचने जा रहा हूँ। आप बोलो कि मैं तो बेचूंगा ही 11 रुपए की कम से कम। क्यों? उसी वे से कस्टमर का माइंडसेट बन जाएगा। अगर महंगी है तो भाई कुछ तो अलग होगा ना। और अगर आपने पहले वाले तीनों चारों एलिमेंट्स का अच्छे से ध्यान रख लिया है कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आपकी पैकेजिंग भी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे भी बेचने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो आपका स्ट्रेटेजिकली सारा कुछ मैनेज होना चाहिए मार्केटिंग में। यही इकोसिस्टम है जिसके 60-70% तक हम अभी पहुंच गए हैं। देन कम्स प्रमोशन।
प्रमोशन में ये एक जेनरिक वर्ड यहाँ पे दिया गया, अदरवाइज मैं आपको प्रमोशन को डिफरेंशिएट कर चुका हूँ पब्लिसिटी से, एडवर्टीजमेंट से, लेकिन यहाँ पे जेनरिकली प्रमोशन यूज होता है वर्ड मार्केटिंग में, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्केटिंग, बट एट द 5th और 6th लेवल जो भी हमने अभी डिफाइन किए। तो प्रमोशन में सारा कुछ ही आ जाता है। प्रमोशन में मार्केटिंग हर तरह की आ जाती है, इसमें एडवर्टीजमेंट भी है, इसमें पब्लिसिटी भी है, इसमें ब्रांडिंग भी है, ये सारा कुछ प्रमोशन के अंदर ही कवर हो रहा है हमारा। जब आपने ये पहले वाले सारे एलिमेंट सही डिसाइड कर दिए हैं, उसके बाद हमारी प्रमोशन की बारी आ जाती है कि आपको सही वे से प्रमोट कैसे करना है, किस चैनल में करना है। उसमें आपको मीडिया भी डील करना पड़ता है, प्रमोशनल मीडिया, जिसमें एडवर्टाइजिंग मीडिया भी आ जाता है, टीवी भी आ जाते हैं। ये जो ATL BTL वाला कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, ये प्रमोशन पे भी वैलिडेट होता है। ATL एडवर्टीजमेंट, BTL एडवर्टीजमेंट, TTL एडवर्टीजमेंट। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज डिफाइन करके मीडिया चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट्स ऑल्सो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिर मैं वही बोलूंगा, टाइम कम है तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें हम एक्विजिशन देखते हैं कि क्या एक्विजिशन हो रही है और क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमने प्रमोशन पे क्या इन्वेस्ट किया था, टोटल 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, 10 बंदों पे इन्वेस्ट किया था, उसमें से एक ही बंदा आया जिसने वो प्रोडक्ट परचेज किया, तो दैट इज और एक्विजिशन। 10 में से एक आया, मतलब 10% एक्विजिशन हमने मान ली उसको, और उस पे एक को एक्वायर करने के लिए हमें 100 रुपया खर्चना पड़ा। हमने तो 10 के लिए खर्चा था 100 रुपया, लेकिन आया एक ही बंदा, लेकिन हम यही समझ के चलेंगे कि एक्विजिशन फी हमारी उस पर चली गई 100 रुपया, तो एक बंदे की एक्वायरिंग फी हमारी है 100। सो इस प्रोसेस को मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रीफ कर दिया। देन इज people. Sorry. People is what, which is the key element, which is the backbone of marketing. People में वो सभी लोग आ जाते हैं जिनसे हमारा बिजनेस सक्सेस हो रहा है, पार्ट वो मार्केटिंग का ही है। पीपल में कौन लोग हैं? पीपल में सबसे पहले हैं आपके डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आपको हेल्प किया। वो आपके स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो आप खुद भी हो, आपके पार्टनर्स भी हैं, उसके साथ वो आपकी स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, लेबर है। ये सारे वो पीपल हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन ना हो तो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर पाओगे। देन कम्स कस्टमर। कस्टमर इज अगेन पीपल जिनका आपने इस तरीके से ध्यान रखना है। पहले तो मैं कस्टमर से पहले बोलूंगा उन सभी पीपल, जो पीपल की हम बात कर रहे हैं, उन सभी लोगों का ध्यान इस तरह से रखना है, चाहे वो आपका स्टाफ है, चाहे वो आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, इस तरह से ध्यान रखना कि किसी को भी ये ना लगे कि यार हमें इग्नोर करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो आपकी इंटरकनेक्टिविटी, आपकी इंटरेक्शंस, आपकी कनेक्टिविटी उन पीपल के साथ ऐसी होनी चाहिए कि उनको लगे कि दिस इज अ फैमिली, हम फैमिली में काम कर रहे हैं, हम कोई वर्किंग एटमॉस्फेयर में नहीं आए। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर मैं कंसिडर करता हूँ कि कस्टमर इज अगेन योर फैमिली। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि कस्टमर इज माय फैमिली, हम कोई प्रोडक्ट को बेचने से नहीं रोक पाएंगे। आपका प्रोडक्ट आंखें बंद करके बिकना शुरू हो जाएगा। जब कस्टमर को ये फील होना शुरू हो गया कि आई एम अ फैमिली, मैं इस ब्रांड के साथ कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं फैमिली हूँ, उस दिन वो आपने डाली है वो चीज उनके दिमाग में। कस्टमर को खुद ब खुद नहीं आएगा अंदर से फीलिंग कि मैं फैमिली हूँ। आपके एक्सपीरियंसेस जो कस्टमर के साथ होने वाले हैं, आप जो कस्टमर को बताओगे, दिखाओगे, बेचोगे, वो सारी चीजें कस्टमर को एक्सपीरियंस देंगी कि नाउ आई एम अ फैमिली, आई एम बीइंग ट्रीटेड एज अ फैमिली, तो आई एम अ फैमिली। जिस दिन आप ये चीज ले लेते हो, देन कम्स द लास्ट थिंग। जो एलिमेंट्स हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन मैं उस इकोसिस्टम का लास्ट नोड का लास्ट पॉइंट जो कंसिडर करता हूं, दैट इज रिटेंशन। जिस दिन आप कस्टमर को फैमिली एक्सपीरियंस दे देते हो, उस दिन वो कस्टमर आपका रिटेन हो जाता है, वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, और उस दिन वो चीज अचीव होती है जिसके लिए हर कंपनी पीछे पड़ी हुई है। उसको हम बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी इज बीइंग कंसिडर्ड द बेस्ट पब्लिसिटी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। उसके जिसने ये चीज अचीव कर ली, उसको मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाए,
और मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ उसकी भी माउथ पब्लिसिटी की। आज एप्पल है, एप्पल ने चाहे वो माउथ पब्लिसिटी अचीव कर ली हुई है, हम एप्पल सिर्फ माउथ पब्लिसिटी पे लेते हैं। हमें पता है, मुझे पता है कि अगर मैं वैसे एप्पल का यूजर नहीं हूँ, सॉरी टू से, लेकिन एप्पल जिसने लेना है वो सिंपली ये सोच के लेता है कि मैं एप्पल ले रहा हूँ, कि उसने लिया है, इसने लिया है, उसने बोला है, उसके पास भी है। इन्फ्लुएंसर इफेक्ट भी आते हैं, बड़े इफेक्ट आ जाते हैं उसमें, लेकिन वो ये सोचता ही नहीं है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। वो डबल से भी ज्यादा पैसे देके एप्पल खरीदता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने, उस ब्रांड ने अपनी माउथ पब्लिसिटी अचीव कर ली हुई है, रिटेंशन अचीव कर ली हुई है, विच इज द लास्ट की एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। दिस की एलिमेंट कंप्लीट्स दैट इकोसिस्टम जिसकी हम स्टार्टिंग पे बात कर रहे थे। ये इकोसिस्टम जब मार्केटिंग का कंप्लीट हो जाता है, फिर आप आंखें बंद करके अपना प्रोडक्ट बना के छोड़ दो, और सिस्टम आपने क्रिएट कर ही दिया है, दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली बिक रही है। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन मार्केटिंग में। मेरे ख्याल से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमने सारा क्लियर कर दिया है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 17:59 मतलब 10 मिनट अभी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें Q&A भी है अभी। तो अगर तो क्वेश्चंस हैं तो फिर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, कभी दोबारा और सेशन आएगा तो फिर उसमें और चीजें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी बता सकता हूँ। तो अनुराधा जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू आस्क फॉर क्वेश्चंस, अगर किसी के हैं तो। Sure. Thank you so much, Amit ji. Any more questions? Any questions, or you want him to continue? Guys, if you have any question, then we can take them, or we'll continue to share some strategies on marketing. Yes, I have a question. Okay. Amit ji, my question is कि जैसे आपने बताया जो जो सही दिखता है, मतलब एक तो है ना, जो जो दिखता है वो बिकता है, जो सही दिखता है। So it's regarding, it's my startup, it's a video production house, तो it's वो सर्विस इंटेंजिबल के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको मैं सही तरीके से, मतलब यस वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन ये इंटेंजिबल जो सर्विस है, जो हम इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। तो इफ यू हैव एन इनपुट, डू शेयर। थैंक यू। आपकी आवाज म्यूट म्यूट है, आप mute पे हैं, mute. म्यूट। सॉरी, थैंक यू करण जी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर किसी और से आता ना तो मैं और बढ़िया वे से एक्सप्लेन करता, फॉर्चुनेटली, बट आप क्वेश्चन उस जगह से आ रहा है जहां पे आप वीडियो की ही बात कर रहे हो। सही दिखने का आपके केस में मतलब क्या है कि आप एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो विच इज इंटेंजिबल सर्विस। अब वो दिखेगी कैसे? वो ऐसे दिखेगी कि लेट्स से आई एम योर क्लाइंट। अब मैं आपका क्लाइंट हूं, तो मेरा प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में आपके थ्रू दिखा रहा हूं, मतलब मेरा प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया। मेरा प्रोडक्ट क्या है कि मेरी प्रेजेंटेशन आपने डिजाइन की है, आपने मेरे प्रोडक्ट का एक वीडियो शूट किया और मेरे को दे दिया। अब वो वीडियो शूट मैं मार्केट में दिखा रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं आपकी भी एडवर्टाइज कर रहा हूँ। आपको एडवर्टाइज कैसे कर रहा हूँ? मैं पहले वो चीज दिखा रहा हूँ जो सही है, जो सही दिखता है वो सही बिकता है। मैं वो दिखाना शुरू कर दिया जो सही है, जिसके कारण मेरा प्रोडक्ट और बिकना शुरू हो गया। लेट्स से आई एम सेलिंग दिस माउस, तो मैं माउस की पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट या उसकी वीडियो डेवलपमेंट आपके थ्रू करवाई। उसके बाद उस वीडियो को मैंने मार्केट में दिखाया और मेरी सेल्स बूस्ट होनी शुरू हो गई। मेरी सेल्स 2x हो गई, 3x हो गई। अब वो क्यों हुई? क्योंकि मैंने इसका वीडियो आपसे शूट करवाया, प्रोडक्ट वीडियो। अब वो सही तो आपने बनाया था, दिखाया मैंने, लेकिन जब आप ये मार्केट में कहना शुरू कर दोगे कि यार ये जो माउस था ना, इसका जो भी क्वालिटी, ये लॉजिटेक है, तो ये लॉजिटेक का माउस जो है, इसका वीडियो शूट ये मैंने अपनी, आपकी कंपनी का नाम आपने बताया करण जी, माना लैब्स आपने बताया, तो माना लैब्स का ये प्रोडक्ट शूट था। तो आप जब कस्टमर को, अपने कस्टमर को बताओगे कि ये लॉजिटेक का प्रोडक्ट शूट मैंने किया हुआ है, तो वो 2 मिनट नहीं लगाएगा और आपसे अपना प्रोडक्ट शूट करवा लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये लॉजिटेक बहुत बिक रहा है मार्केट में आज की डेट में। हाँ, उसको ये शायद बाद में पता चलेगा कि ये क्यों बिक रहा है, या अगर उसको पता होगा कि इस वीडियो के थ्रू बिक रहा है, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, उसने लॉजिटेक ने आपकी मार्केटिंग भी साथ में कर दी, आपके प्रोडक्ट की भी। और आप खुद अगर दिखाओगे कि यही वीडियो देखते हो ना आप लॉजिटेक का, तो वो देखना शुरू कर देगा कि हाँ यार, ये ब्रांड ने अगर इससे डिसाइड किया है बनवाने को,
और ब्रांड को बेनिफिट मिल रहा है, आप बोलोगे मैं 10 प्रोडक्ट शूट कर चुका हूँ, तो वो और ज्यादा उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि ब्रांड को एक का फायदा मिला होगा तभी वो 9 और बना चुका है, तो ठीक है मैं भी कराता हूँ। तो ये सही दिखना आपने क्रिएट किया और उसके बाद वो चीज सही बिकना शुरू हो जाएगी। आई थिंक आई एम क्लियर विद माई आंसर। थैंक यू। एंड फॉर्चुनेटली लॉजिटेक का सही में हमने शूट किया हुआ है। वेरी गुड। अभी उनकी एक छोटी सी शॉर्ट एड बनाई थी। आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क, कैन आई आस्क? Please. Karan, can we take the question from Abhinav first? I Okay, think he's sure. also raising hand. Yes, Sure. Abhinav, please go ahead. Thank you, ma'am. So, sir, I wanted to ask, being an entrepreneur, some of us are first-time entrepreneurs like me. So, brand name also plays a pivot role in marketing and advertisement. So, when we talk to IP lawyers, when we talk about finalizing a trademark or a brand name, they suggest that it should not be a common name. I was in a session where they were telling that having a name that is common will not give you something exclusivity for your company or brand. But being in the marketing part, we always consider that the name should be something that people can connect with, or it should be an emotion. So from your experience, like what would be the ratio of it should be exclusive or it should be something people can connect with? That's nice. So बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनव, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर एंडेवर जो आपने स्टार्ट किया है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. थैंक यू सर. और अभिनव, ये जो आप सोचे हो बिल्कुल सही है. नेम शुड बी कॉमन ओनली, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो नेम क्या है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेम. एक तो है आपकी कंपनी का नाम, कंपनी नेम. एक है आपका ब्रांड का नेम. अब किस नेम की आप बात कर रहे हो? कंपनी नेम डजंट मैटर इफ यू हैव अ ब्रांड नेम सेपरेट. So कई लोग ब्रांड नेम को ही कंपनी नेम से डील करते हैं. so I'll give you an example. The company name is, for example, I am doing marketing, so the company name is Javikalp. However, the brand name that we are finalized is Organic Thela. So we have also applied for the trademark. Organic is very common word. Very So true. the IP lawyer says that it's not that exclusive, but we have put up the name so that people can connect. Organic Thela as in cart. So e-commerce platform for organic. So Organic Thela is the name. So with no offense to your IP lawyers, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो गलत है. गलत इसलिए है क्योंकि वो अपने ट्रेड में सही है. वो आईपी लॉयर्स हैं, आईपी लॉयर्स का काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है. ऑर्गेनिक ठेला इन कंपैरिजन टू द सेकंड थिंग जो मुझे भी नहीं क्लियर हुई अभी तक क्या है. तो जिसके सामने आप वो नाम लोगे, मैं भूल भी गया, मतलब 10 सेकंड में मैं वो नाम भी भूल गया हूँ जो आपने पहले दिया था. तो Yeah, right. ऑर्गेनिक ठेला मुझे याद इसलिए है क्योंकि दिस इज अ कॉमन नेम. तो आपने एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट की है उस नेम से, ऑर्गेनिक ठेला नेम से. जितना कॉमन रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए. हाँ, इतना कॉमन नहीं होना चाहिए कि वो किसी और ब्रांड की भी याद दिला दे आपको. ये चीज का ध्यान आपको साथ में रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक ठेला आपके किसी कॉम्पिटिटर का नाम भी याद दिला देगा तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा आपकी मार्केटिंग या आपकी सेल्स को भी. तो ऑर्गेनिकली वो नाम बिल्कुल सही है जो कॉमन है. मैं उसमें 110 पॉइंट्स दूंगा अपने. Fine. Thank you, sir. थैंक यू सो मच. Yes, Karan, please go ahead. अमित जी, थोड़ा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या फर्क है? See, Karan, marketing is a big umbrella, which and branding is an element which comes under the umbrella of marketing. Marketing is anything what you are doing for promoting or for selling your product. ठीक है, दो चीजें कंसिडर करो. मार्केटिंग इज फॉर सेल्स. मार्केटिंग क्यों करते हो आप? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि आपने अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सेल करना है. तो ये दो चीजें ब्रॉडर लेवल पे आप याद रखो. मार्केटिंग इज फॉर सेल्स, फॉर अचीविंग योर सेल्स. लेकिन सेल्स को अचीव करने के लिए, मार्केटिंग से लेके सेल्स तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी आएगा, जितनी भी आप एक्टिविटीज करोगे, वो सारी मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंडर ही कवर होगी. ठीक है, तो ब्रांडिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट ब्रांडिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली मार्केटिंग. ठीक है, ब्रांडिंग का डिफरेंस आपको मैंने बता दिया. अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से पर्सनली समझ सकते हो, मैं आपको 10 मिनट लगा के उसको समझा सकता हूँ. ब्रांडिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग विच हैमर्स योर ब्रांड ओवर द कस्टमर्स ब्रेन और कस्टमर्स माइंड. ठीक है, तो ब्रांडिंग इज, मार्केटिंग इज जो हम सारी चीजें करते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट सेल होगा.
आई थिंक आई एम क्लियर टू आंसर योर क्वेश्चन। करण जी हैं मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी, वो अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। ओके ओके, एनीवन मोर? Okay, we can take a few more questions, although we are running out of time. Uh, please go ahead if you have any questions. I think अगर people नहीं तो मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ जरूर, हाँ अगर जी, क्वेश्चंस नहीं है तो। बिल्कुल जी। हम आजकल डिजिटल मार्केटिंग और कन्वेंशनल मार्केटिंग, ये दो चीजें चलती हैं जिसमें डिजिटल का आजकल बहुत ज्यादा जोर है। उसके रीजंस भी हैं, काफी अच्छे अच्छे रीजंस हैं। एक तो इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक है जो हमें मेट्रिक्स भी दे रही है साथ में, कि कहाँ कहाँ तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचा, कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोग एंगेज हुए उस चीज के साथ। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग की तरह से डील नहीं किया जा रहा आज की डेट में। डिजिटल एडवर्टीजमेंट बन के रह गई है वो सिर्फ। ठीक है, बहुत मेरे ख्याल से रेयर लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। कर सभी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वो नहीं कर रहे। आपके इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आज चीजें समझाई हैं मार्केटिंग के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग डिजिटल एडवर्टीजमेंट और यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। यू आर डूइंग डिजिटल एडवर्टीजमेंट क्यों? क्योंकि आप अपना एक क्रिएटिव बनाते हो, अच्छा सा क्रिएटिव, बहुत बढ़िया दिखने वाला क्रिएटिव बनाते हो, उसके साथ एक प्रमोशनल बजट जोड़ देते हो, फेसबुक का, इंस्टा का या किसी का भी। उस बजट के साथ उसको लोगों को दिखाना शुरू कर रहे हो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो दैट इज जस्ट एडवर्टीजमेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। यू आर नॉट डूइंग मार्केटिंग, यू आर डूइंग एडवर्टीजमेंट ओनली, डिजिटल एडवर्टीजमेंट यू कैन से दैट। लेकिन लोग उसको बोलते हैं आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? उसके लिए आपको एक फनल बनानी पड़ती है। मैं नॉर्मली लोगों को यही बताता हूँ। वो क्लाइंट हमें बोलता है कि सर मैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही, इफेक्टिव कैसे करें? हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? जब वो बताते हैं तो हमें लगता है इसमें मार्केटिंग कहाँ है भाई, ये तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप बस। भेड़ चाल हो रही है, उसने करी मैं भी कर लेता हूँ, मैं करी तो एक और करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट इस तरह से वायरल हो चुका हुआ है कि हर बंदा कहता है कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। बट डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इफ यू आर क्रिएटिंग योर फनल। फनल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पे मैं 2 मिनट और लूंगा। खैर, फनल इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल फनल, कुप्पी बोलते हैं ना हम इसको पंजाबी में, हिंदी में, तो वो कुप्पी ही है। फनल का जो अपर पार्ट रहता है, ऊपर वाला हिस्सा उसका, वो ब्रॉड होता है बहुत ज्यादा, और नीचे वाला कंट्रैक्ट होके इतना सा रह जाता है, जिसमें से फिल्टर होके चीजें नीचे जाती हैं। अब ब्रॉडर पार्ट जब होता है उसमें हम मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी लगाते हैं, जिससे लोग हमारे पास जुड़ना शुरू होते हैं। आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर उस चीज की, कि आपने एक मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया अपना। मार्केटिंग कैंपेन से फॉर द माउस अगेन, कि माउस बेचना है मुझे अपना। लॉजिटेक कंपनी ने स्टार्ट किया कैंपेन। तो लॉजिटेक ने अपने माउस की एक सिर्फ एडवर्टीजमेंट की, मतलब एक सिर्फ कैंपेन कैंपेन में फर्स्ट एलिमेंट जोड़ा, उसका एक क्रिएटिव बना दिया माउस का। अब उस क्रिएटिव ने क्या काम करना है? उसने आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। क्रिएटिव ने कभी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। हाँ, वो आपके इंप्रेशंस, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग लेवल से बात करें तो आप उसके इंप्रेशंस बढ़ा सकते हो। कि आपने टारगेट किया 2 लाख बंदों को, तो 2 लाख इंप्रेशन में से, 2 लाख बंदों में से 1 लाख आपके इंप्रेशंस बन के आ गए। इंप्रेशंस मतलब 1 लाख बंदों ने इस एक्टिविटी को देखा, कि ये डिजिटल क्रिएटिव 1 लाख बंदों ने देख लिया कि ये माउस है। अब उस 1 लाख बंदे में वो फनल में कहाँ पे आए? फर्स्ट लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे आ गए हो। अब धीरे धीरे उसकी कंट्रैक्शन हो रही है नीचे वाले लेवल तक जाते जाते। अब क्या होगा? फर्स्ट लेवल आ गया इंप्रेशंस का। अब उन इंप्रेशन में से 1 लाख बंदों में से हो सकता है 50,000 या 20,000 आपके साथ एंगेज हो गए। एंगेज कैसे हुए? किसी ने पूछा इसमें क्या क्या क्वालिटीज है माउस में, किसी ने पूछा इसका प्राइस क्या है, किसी ने पूछा कि ये कहाँ से मिलता है। तो ये एंगेजमेंट है। वो लोग आपके क्रिएटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो एंगेज हो रहे हैं। अब उस एंगेजमेंट में से आपके सामने लीड्स बन के सामने आ जाएंगे। मान लो 1 लाख बंदों के इंप्रेशन थे, उसमें से 50-20,000 की एंगेजमेंट हो गई। उसमें से 200 लोगों ने इंटरेस्ट शो कर दिया आपसे वो माउस लेने के लिए। 20,000 में से 200 बंदों ने इंटरेस्ट शो किया। अब इंटरेस्ट शो जब जिन्होंने किया, वो क्या है? लीड्स है।
कि ये लीड्स हैं जिनको हम माउस बेच सकते हैं, अभी बिका नहीं है। ठीक है, अब मार्केटिंग जो करण जी ने भी क्वेश्चन किया था वो इसमें क्लियर हो जाएगा। हमने एक तरह की एडवर्टीजमेंट की, किसके लिए? सेल करने के लिए। दिस इज एडवर्टीजमेंट एंड दिस विल बी गोइंग टूवर्ड सेल। अब इसके बीच में जो जो हो रहा है, इंप्रेशंस आए, इंप्रेशंस के बाद एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद कनेक्टिविटी के बाद लीड्स आ गई, 200 लीड्स। अब 200 लीड्स ने इंटरेक्ट किया हमारे साथ, किसी ने कहा प्राइस ज्यादा है, किसी ने कहा ठीक है, किसी ने कहा इसमें फीचर कम है, लेकिन 200 लीड्स में से लेट से 20 बंदों ने हमसे वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब फाइनली मेट्रिक्स क्या बोल रहे हैं कि 1 लाख बंदों के सामने वो क्रिएटिव गया और उसमें से सिर्फ 20 लोगों ने खरीदा। ठीक है, 1 लाख बंदों को हमने दिखाया, 20 ने खरीदा, लेकिन उसके बीच में बड़ी चीजें और हुई। क्या हुई? उसमें एंगेजमेंट हुई, उसमें एंगेजमेंट के बाद वो लीड्स बन के हमारे सामने आई, लेकिन खरीदा सिर्फ 20 ने। एक्विजिशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट से आपने 1 लाख रुपया या 100 रुपया खर्च किया उस एक्टिविटी के लिए और 20 लोगों ने खरीद लिया, तो आपकी यहाँ पे एक्विजिशन सामने आ जाएगी कि कितने पैसे खर्चे और कितनों ने लिया। 20 लोगों ने लिया, तो मतलब उसमें 100 रुपए डिवाइड बाय 20 लोग जो भी आएगा वो एक्विजिशन फी बन के आपके सामने आ जाएगी कि इतने पैसे खर्चे और मेरा प्रोडक्ट बिक गया इतने लोगों के लिए। एक बंदे की एक्विजिशन आ जाएगी आपके पास। तो ये चीज एक्विजिशन हो गई। और दूसरा आ गया कि आपने उस फनल के अंडर वो चीज अपनी सेल की। ये बड़ी छोटी एग्जांपल है फनल की, अदरवाइज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑल्सो कि किस तरह की फनल बनेगी। फनल में बहुत चीजें आती है। फनल में एक लैंडिंग पेज भी आता है, फनल में उस लैंडिंग के अंदर, पेज के अंदर वीडियोस भी आते हैं, फिर उस वीडियो के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए और चीजें और एलिमेंट जुड़ जाएंगे। तो फनल की मैं बड़ी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो हमेशा जो मार्केटिंग बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, वो फनल के साथ होगी। अदरवाइज इट इज नॉट मोर देन डिजिटल एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट कोई भी कर सकता है। एक बच्चे को भी बोल दोगे कि फेसबुक को 200 रुपया दे और ये मैंने आपको क्रिएटिव बना के दे दिया और वो क्रिएटिव को बूस्ट कर दे, बस दैट्स ऑल। वो कोई भी कर लेगा, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटर को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मार्केटियर वही है डिजिटल मार्केटियर जो आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपकी मार्केटिंग करेगा। और दूसरा क्वेश्चन एक और इसमें नॉर्मली सामने आता है कि व्हाट इज बेटर, डिजिटल मार्केटिंग और कन्वेंशनल मार्केटिंग। इसमें मेरा आंसर नॉर्मली ये रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड कन्वेंशनल मार्केटिंग बोथ शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। ये दोनों इकट्ठी चलनी चाहिए, जुड़नी चाहिए, आपस में इंटरेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए एग्जांपल्स भी होती हैं बहुत सारी कि हम कहीं पे जहाँ पे भी कन्वेंशनल मार्केटिंग एक्टिविटी भी करते हैं उसको कहीं ना कहीं डिजिटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो भी एक इकोसिस्टम बन जाए। तो हमारा प्रोडक्ट जब बिकना है तो पूरे इकोसिस्टम के अंदर सारा कुछ ही कवर कर लेता है और उसकी सेल्स एकदम से बूस्ट होती है, एक्स में चली जाती है। इंक्रीमेंटल नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियल सेल्स बन के सामने आ जाती है। तो मेरे ख्याल से टाइम वाकई बहुत कम है, मैं ओवर हो रहा हूँ अभी भी। एक्सप्लेन करने के लिए मैं 10-10 घंटे बोल सकता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। सो टाइम की अगर लिमिट ना हो तो मैं फेल हो गया। अनुराधा जी सॉरी, आपने बोला था 20 साल के एक्सपीरियंस को 30 मिनट में कवर करना है, मैं 1 घंटे में भी नहीं कवर कर पा रहा हूँ अभी। नहीं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अमित जी। बट आई थिंक जो आपने शेयर किया वो सरफेस लेवल अभी आप कर पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज वेरी वास्ट। तो आपका जो एक्सपीरियंस है और लर्निंग्स है वो आप एक सेशन में नहीं शेयर कर पाएंगे। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल दैट यू कवर्ड सो मच स्टिल। तो हमें वो, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं साथ में नोट्स बना रही थी, ATL, BTL, TTL। देन यू टॉक्ड अबाउट, ब्रीफली आपने टच अपॉन किया रेड ओशन, ब्लू ओशन, और ऑल द लर्निंग्स अबाउट हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव। एंड मुझे खुद नहीं एडवर्टाइजिंग और ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस नहीं पता था। सो आई थिंक लॉट ऑफ अस डिड नॉट नो, बट एक ऐसा होता है इंटेलिजेंट ऑडियंस वैसे भी लगता है वो रेज हैंड नहीं करते हैं। तो तो बहुत से डाउट्स आज आपने क्लियर किए, स्पेशली एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ब्रांडिंग क्या है। So I think all in all, we are going as learned audience today. Thank you so much, Amit ji. And थैंक यू सो मच। I would really urge all the audience, if you have any questions, we will be posting this video on YouTube. So if you have any subsequent questions, you can post your comments and we will try to get answers from Amit ji and share with you all. Thank you एक so चीज much. मैं और शेयर करना चाहूंगा अनुराधा जी यहाँ पे, Sure. क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी खुद ही बोला है कि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
Naturally. लेकिन जो मेरी बुक है जो आपने पहले बताया भी है, उस Marketing बुक में shark. मैंने काफी चीजें उसमें कवर की हुई हैं। अगर कोई रीडिंग का शौकीन है, जो बुक पढ़ने का शौकीन है, तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट बुक ऑर्डर कर सकते हो। एड्रेस भेज के आपके एड्रेस पे कुरियर हो जाएगी वो बुक। तो मेरे ख्याल से आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप मेरी बुक पढ़ते हो और उसका फीडबैक भी देते हो कि इसमें क्या चीज़ें आपको कम लगी, तो आप ये भी कन्वे कर सकते हो अनुराधा जी। इफ यू हैव योर माय बुक अलोंग विद यू, तो आप वो शो करके दिखा सकते हैं। I have the book. I don't have a online link. आपके partners are ऑनलाइन लिंक पे इनको परचेज My करनी book. पड़ेगी, या मैं उस पे एक ऑफर उधर भी कर सकता हूँ। अदरवाइज किसी ने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी मंगवानी है, फिजिकल बुक मंगवानी है, तो मैं उनको कोरियर भी करवा सकता हूँ इधर से। For sure. So it is marketing shark eating. यस। Right. I think everyone has seen. Thank you so much for being with us today. Let's stay connected. And I would also talk to all the startups here, those who are still not members of Punjab Angels Network. We get you mentors like Mr. Amit Madan and all the likes. You have already heard them. So they are all on the panel as investors. You can get an access from all the mentors here. So do let us know if you want to be a member. You have our email ID, you have my contacts, and you have Karthik here, Sahil ji. So do get in touch with us for this. Thank you so much. See you next Wednesday at the same time, 5 o'clock. थैंक यू सो मच अनुराधा जी, Thank एंड you. थैंक्स Thank ऑडियंस। you. Thank Bye-bye. you. Thank you, everyone. Bye. Bye. Thank you.